جینا ایک گوہر ہی نہیں، یہ صبح کا دروازہ خاور بھی ہے۔ 1964 سے 1984 تک پی ٹی وی کی 2 دہائیاں تکمیل کو پہنچی۔ 1985 سے پی ٹی وی نے ایک اور سفر شروع کیا۔ اس سفر میں بھی پی ٹی وی کو نئے پیچ و خم سے گزرنا پڑا۔ فروری 1985 میں ملک میں غیر جماعتی انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ پی ٹی وی نے ان انتخابات کے نتائج سے قوم کو بروقت آگاہ کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے۔ پی ٹی وی نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی فلم کوریج اور نتائج کی ترسیل کے لیے 6 ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کو استعمال کیا۔ 10 مارچ 1985 کو صدر پاکستان نے کوئٹہ ٹیلی ویژن اسٹیشن کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ اس عمارت پر مجموعی طور پر 16 کروڑ روپے لاگت آئی۔ اس میں تمام جدید سہولیات مہیا کی گئیں۔ لاہور اور کراچی کے بعد کوئٹہ پاکستان ٹیلی ویژن کا تیسرا مرکز ہے جس کا اپنا ٹرانسمیٹر موجود ہے۔ اسلام آباد ٹیلی ویژن اسٹیشن کی نشریات مری پر نصب ٹرانسمیٹر سے نشر کی جاتی ہیں۔ پشاور مرکز کی نشریات کے لیے چراٹ پر نصب ٹرانسمیٹر سے مدد دی جاتی ہے۔ 1985 میں صرف ایک برس میں 4 نئے براڈ کاسٹنگ سینٹرز ملک کے نشریاتی افق پر نمودار ہوئے۔ 30 دسمبر 1985 ملک میں مارشل لاء کا آخری دن تھا۔ مدھم جمہوریت کی روشنی میں کاروان شوق نے پھر اگلی منزلوں کی سمت رخت سفر باندھا۔ 1985 ہی وہ سال ہے جب دنیا کے بلند ترین انسان محمد عالم جناح کو شعبہ تعلقات عامہ پی ٹی وی کراچی میں اعزازی ملازمت دی گئی۔ وہ اب تک اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ 1985 میں لاہور مرکز کے پروگرام زنبیل کو بچوں نے بہت پسند کیا۔ اس پروگرام میں ہر عہد کے بچوں میں مقبول مشہور کہانیوں کی ڈرامائی تشکیل کی گئی۔ آج تک کسی کو ہم سے یہ پوچھنے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ کراچی مرکز سے سہیل رانا کا مقبول پروگرام سنگ سنگ چلے اپریل سے شروع ہوا۔ جولائی ستمبر کی سہ ماہی سے پشاور مرکز نے بچوں کے لیے ایک دلچسپ ڈرامے بھوت بنگلہ کا آغاز کیا۔ اسے غلام محمد قاصر نے تحریر کیا اور ہدایت کاری کے فرائض بشرا رفیق نے انجام دیا۔ کوشش کوئٹہ مرکز سے پیش کیا جانے والا بچوں کا ایک اور مقبول پروگرام تھا۔ اس کی 40 قسطیں نشر کی گئیں۔ اسے ذوالقرنین حیدر نے تحریر کیا۔ کوشش فہمیدہ نسرین کی پیشکش تھی۔ مرغی اسی جگہ چھپا دو، مرغی اسی جگہ چھپا دو، باہر نکلو، باہر نکلو، یہ چوری کی مرغی ہے کیا؟ کوشش سیریل بچوں کا سیریل تھا، لیکن بڑے بھی اس کو اسی شوق اور اسی خشوع و خضوع سے دیکھتے تھے اور اسی دلچسپی سے دیکھتے تھے جیسے کہ بچے۔ اس میں ہر ایپیسوڈ ایک مکمل کہانی ہوتی تھی اور ہر ایپیسوڈ میں ایک پیغام بچوں کے لیے خاص طور پہ اور بڑوں کے لیے بھی ہوتا تھا۔ جنوری 1985 میں پی ٹی وی نے قوت گویائی اور سماعت سے محروم افراد کے لیے ایک یادگار پروگرام بولتے ہاتھ شروع کیا۔ حاضر ہیں۔ یہ پروگرام ہم آپ کی رہنمائی اور مشوروں کو سامنے رکھ کر ترتیب دیتے ہیں۔ اپریل جون کی سہ ماہی میں اسی نوعیت کا ایک اور پروگرام اشاروں کی زبان کا آغاز ہوا۔ اس کی کمپیئرنگ کے فرائض افتخار احمد انجام دیتے تھے۔ 16 اپریل کو لائق احمد کا معلوماتی پروگرام ٹی وی میگزین کے عنوان سے دوبارہ شروع ہوا۔ آئندہ 2.25 برس اس کے کل 97 پروگرام نشر کیے گئے۔ زیادہ تر پروگرام جمشید فرشوری نے پیش کیے۔ بزرگوں کے یا جو ہمارے ہاں بوڑھے لوگ ہیں ان کے مسائل پہ گفتگو نہیں ہوئی۔ اپریل 1985 سے کراچی مرکز سے مقبول کوئز شو نیلام گھر کے دوسرے دور کا آغاز ہوا۔ 40,000 کو ٹھوکر ماری ہے اور پوچھ رہا ہوں کہ ملکہ نور جہاں کے پہلے شوہر شیر افغن کا اصل نام کیا تھا؟ علی قلی خان۔ علی قلی خان۔
लविना। चेहरे अहद साज शख्सियात से मुलाकात का एक यादगार सिलसिला था। तालिब इल्मों के लिए, हमारी नई नस्ल के लिए कोई पैगाम? बस पैगाम यही है कि आप अपनी ज़िंदगी को, चाहे वो ज़ाहिरी ज़िंदगी हो, बातनी ज़िंदगी हो, घर की हो, बाहर की हो, सियासत की हो, मज़हब की हो, अदब की हो, साफ सुथरी रखें। इस प्रोग्राम के जरिए अब्दुल सत्तार ईदी और दीगर कई शख्सियात के काम सही मानों में पहली मर्तबा आवाम के सामने आए। इसकी मेजबान खुशबख्त शुजात थीं। देकर जाऊं कि जो हमारा मज़हब और हम मुसलमानों का काम है कि हम एक मिशनरी हैं और मिशनरी की तरह हमें जीना चाहिए और एक नमूना पेश करना चाहिए। अल्लाह सब मुसलमानों। चेहरे प्रोग्राम के लिए अगर मैं एक लफ्ज़ में ये कहूँ कि वो मेरी ज़हनी तरबियत का प्रोग्राम भी था तो गलत ना होगा, क्योंकि वो एक यादगार तजर्बा है मेरे लिए। इसलिए कि देखिए, जब आप अपने आप से बालातर लोगों से बात करते हैं, उनकी सतह पर आकर आपको बात करना होती है, तो आपको अपनी ज़हनी तरबियत करना पड़ती है। तो उस प्रोग्राम में क्योंकि ऐसे लोग आते थे जो निस्फ सदी पर मुहीत उनकी ज़िंदगी के वाक़यात पर गुफ्तगू करना होती थी, तो वो मेरी अपनी एक सेल्फ ग्रूमिंग थी। फातिमा सुरैया बजिया के ड्रामा सीरियल अना का आगाज जनवरी से हुआ। ये अना नामी एक ज़हीन लड़की की कहानी थी जो अपनी बिछड़ी वालिदा को अपने वालिद के करीब लाती है। हिदायतकार हैदर इमाम रिजवी थे। कोयटा की ड्रामा सीरीज किरदार भी बड़ी तवज्जो से देखी गई। ये सीरीज तकरीबन 1 बरस जारी रही। कोयटा टीवी आजकल ड्रामों के सिलसिले में बहुत आगे है, लेकिन ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं, इसलिए कि कोयटा टीवी को कायम हुए अभी चंद ही महीने हुए थे कि हमने पहला ड्रामा तीगा के नाम से किया। आबिद शाह आबिद का लिखा हुआ ये ड्रामा प्रोड्यूसर मुनव्वर तौफीक ने प्रोड्यूस किया और इस ड्रामे में मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं इस ड्रामे में हीरो, जिसे मेन रोल कहते हैं, मेन रोल मैंने किया था। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि तमाम आर्टिस्ट कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं। पेशावर मरकज के मौसम ने जुलाई की सेमाही से अपने रंग दिखाने शुरू किए। जहांज़ेब सुहेल की हिदायतकारी और फजल हुसैन समीम की तहरीर ने इसे मकबूल बनाया। कुछ भी तेरे साथ हुआ उसके लिए मैं माजरत कर लेती हूँ। टेलीविज़न यहाँ जो है हमें ट्रेन कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहा है और हमें ट्रेन कर रहा है। और अब एक माहौल तो नेचुरली, एक सब लोग 20-25 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से, तो नेचुरली ड्रामे ने भी इम्प्रूव किया, आर्टिस्टों ने भी इम्प्रूव किया, प्रोड्यूसर्स ने, टेक्नीशियंस ने, कैमरामैन ने। अब तो एक बड़ा मैच्योर किस्म का एक माहौल बन गया है। सहराए थर की एक खाना बदोश लड़की सुखा इकबाल अंसारी के मकबूल ड्रामा सीरियल कारवां का मरकजी किरदार थी। सुखा की खूबसूरत आवाज़ उसे सहरा से शहर ले आती है, जहां आर्ट के नाम निहाद नाक़िदीन उसका इस्तेहसाल करते हैं। सुखा का किरदार हुमा अकबर ने बड़ी महारत से अदा किया। टीना सानी का गाया हुआ थीम सॉन्ग भी बहुत मशहूर हुआ। कारवां अब्दुल कादर जुनैजो की तख्लीक थी। खास लोग चला रहे हैं। जो तुम्हारा बाप है ना, इसको समझाओ, ये घर इस तरह नहीं चलेगा। किस तरह? देखो सुखा, इस वक्त तुम थर में नहीं हो, कराची में हो। इसी सेमाही में कमाल अहमद रिजवी की ड्रामा सीरीज मिस्टर शैतान कराची मरकज से पेश की गई। इसके प्रोड्यूसर के फराइज अली रिजवी ने अंजाम दिए। आपको तो शैतान कहना मेरे नजदीक शैतान की तौहीन है। 1985 की आखिरी सेमाही में लाहौर मरकज के वक्त में वक्त को बेड़ियां पहनाई। ये रियाज नामी एक ऐसे शख्स की कहानी थी जिसने कोई जुर्म नहीं किया था, लेकिन वक्त ने उसे मुजरिम बना दिया। मैंने अपने हाथों से कमाई और इसकी चमक से आंखें कैसे चकाचौंध हो जाती हैं, ये मेरा मुशाहिदा ज़ाती तजुर्बा भी है। 7 सितंबर को यौम फ़िज़ाइया के मौके पर निशान हैदर सिलसिले का दूसरा खुसूसी ड्रामा राशिद मिन्हाज शहीद पेश किया गया, जिसे अवाम ने बेहद सराहा। इसे मुमताज़ मिर्ज़ा और शहजाद खलील ने तहरीर किया। हिदायतकार भी शहजाद खलील थे। मरकजी किरदार राशिद मिन्हाज शहीद से मुशाबे फ्लाइट लेफ्टिनेंट फारूक इकबाल ने अदा किया। मरीना खान भी इसी ड्रामे से मंजर आम पर आईं। हेलो हेलो फरा, मैं राशिद बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। मैं समझा लाइन कट गई। नहीं तो
अगस्त 1985 में पीटीवी की दस्तावेजी फिल्म नक्श राह गुजर को जनूबी कोरिया में मुनक़िदा सोल प्राइज इंटरनेशनल टेलीविजन प्रोग्राम्स कॉन्टेस्ट में सिल्वर प्राइज मिला। ये दस्तावेजी फिल्म कोयटा मरकज़ के प्रोड्यूसर दुर मोहम्मद कासिम की तख्लीक थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जितना खूबसूरत मुल्क है, उसमें जितनी उसके लैंडस्केप में, कल्चर में जितनी वैरायटी है, उसका हमने हक अदा नहीं किया। डॉक्यूमेंट्री वो वाहिद मीडियम है जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान को सारी दुनिया में मुतारिफ़ करा सकते हैं। हमने अगरचे ड्रामे बहुत किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्यूमेंट्री ही वो वाहिद मीडियम है जिसमें हम इस मुल्क का को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। 8 अगस्त 1985 को 5वें पीटीवी अवार्ड की भयानक रंग तकरीब का एहतमाम कराची में किया गया। ये दूसरा मौका था जब कराची इस तकरीब का मेज़बान बना। इसमें मजमूई तौर पर 40 अफराद को अवार्ड्स दिए गए। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर एम ज़हीर खान थे। 1986 को एक अहम पेशरफ पाक चाइना को प्रोडक्शन का आगाज था। पीटीवी और सेंट्रल चाइना टेलीविजन ने दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजीद मुस्तहकम करने के लिए 2 टेली फीचर्स तैयार किए। इस सिलसिले का पहला ड्रामा पैमाने वफा था, जो सेंट्रल चाइना टेलीविजन ने तैयार किया। पैमाने वफा में इंसानी जज्बात के नशीब फराज, मोहब्बत और दोस्ती के अजीम जज्बे की बड़ी खूबसूरत अक्कासी की गई है। 124 मिनट तवील ये ड्रामा चीनी और उर्दू दोनों जबानों में पेश किया गया। इसकी प्रोड्यूसर जू होन जी को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्न 25 मई 1986 को बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के कहत ज़दगान की इमदाद के लिए रेस अगेंस्ट द टाइम यानी वक्त से मुसाबिकत की दौड़ का एहतमाम किया गया। ये दौड़ पाकिस्तान समेत 78 ममालिक के 277 शहरों में बैक वक्त मुनक़िद की गई, जिसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। पीटीवी भी इस बैनुल-अक़वामी मुहिम में पेश रहा। 18 जुलाई 1986 से जुमे को सुबह की नशरियात का आगाज हुआ। इन नशरियात में टीवी के मशहूर पुराने सीरियल और दस्तावेजी फिल्में दिखाई जाने लगी। जुलाई सितंबर की सहमाही में कोयटा से आपके मेहमान शुरू हुआ। इसमें जानवरों का तारुफ कराया जाता था। अप्रैल 1986 में कराची मरकज से मालूमाती प्रोग्राम 7 दिन का आगाज हुआ। इस प्रोग्राम में माजी और हाल में 7 दिनों में पेश आने वाले वाक़यात का अहाता किया जाता था। इसके प्रोड्यूसर आसिफ अंसारी थे और मेज़बान के फ़राइज़ वहाब सिद्दीकी मरहूम अंजाम देते थे। शो टाइम 1986 का एक यादगार स्टेज शो था। इसमें अनवर मकसूद के साथ मुइन अख्तर और बुशरा अंसारी भी शरीक होती थी। शो टाइम में इंटरव्यूज और मज़ाहिया खाकों के साथ मुख्तलिफ मकबूल नगमों की पैरोडीज भी शामिल की जाती थी। पेशकश कैसर फारूक की थी। गुलकारी भी की, अदाकारी भी की, कंपेयरिंग की, जो कुछ भी किया आपके सामने, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन सब चीज़ों की कोई मंजिल नहीं होती और फनकार के लिए मेरा ख्याल है यही ज़रूरी है कि उसके काम की मंजिल उसे कभी ना मिल सके, ताकि वो काम करता चला जाए अपने शौक़ और लगन से। 1986 के दौरान मौसीकी के कई दिलचस्प प्रोग्राम शुरू किए गए। प्रोग्राम महमिल के ज़रिए पाकिस्तान के चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर की सकाफत को उजागर किया गया। रिम झिम लाहौर मरकज का एक और खूबसूरत प्रोग्राम था। इसमें ख्वाजा खुर्शीद अनवर, फिरोज निज़ामी, मास्टर गुलाम हैदर और रशीद अतरे जैसे मशहूर मौसीकारों की तरतीब दी हुई धुनों में मुल्क के मारूफ गुलकारों ने नग़मे पेश किए। प्रोड्यूसर फर्रुख बशीर थे। माजी की मशहूर अदाकारा मसरत नज़ीर ने अपनी आवाज़ के जादू से इस खित्ते के शादी ब्याह के गीतों को अमर कर दिया। ये प्रोग्राम ख्वाजा नजमुल हसन की पेशकश थी। 10 दिसंबर 1986 से इस्लामाबाद की मौजूदा इमारत से नशरियात का आगाज हुआ। अब रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर के लिए
اسلام آباد سینٹر کے الفاظ استعمال ہونے لگے، لیکن اس مرکز کا باقاعدہ افتتاح 3 ماہ بعد ہوا۔ 30 سال قبل پی ٹی وی کے نام سے ایک چھوٹا سا پودا لگایا گیا، پھر اس ادارے کے کارکنان کی محنت شاقہ نے، فنکاروں کی بے پناہ صلاحیتوں نے اور آپ کے بھرپور تعاون نے اسے ایک تناور اور چھتنار درخت بنا دیا، اور آج ہم سب اس کے سائے سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ 1985 کی طرح 1986 میں ڈرامہ سیریل اور سیریز کی تعداد برابر رہی، لیکن اس بار بھی ڈرامہ سیریل ہی نے زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ جنوری مارچ کی سہ ماہی میں کراچی مرکز سے حسینہ معین کی ڈرامہ سیریل تنہائیاں پسندیدگی کے اعتبار سے سر فہرست رہی۔ مس انیا کہ آپ ہزاروں سال زندہ رہیں اور ان پرندوں کی طرح چہچہاتی رہیں۔ شہزاد خلیل کی ہدایت کاری نے تنہائیاں کے ذریعے عوام کو ایک یادگار تفریح فراہم کی۔ وہ جو پیلا طوطا ہے نا، وہ ذرا پلیز دکھا دیں۔ چھاؤں کوئٹہ مرکز کے ابتدائی دور کی مقبول ترین ڈرامہ سیریل ثابت ہوئی۔ یہ سیریل ڈرامے میں کوئٹہ کی پہچان بنی۔ یہ 3 خواتین سائرہ، ہیرا اور بیلا کی اپنی شناخت کی کہانی تھی۔ شاہد کاظمی کے قلم کی کاوش تھی اور ہدایت کار کاظم پاشا۔ اس کے ذریعے ریاض مرحوم اور لیلا زبیری متعارف ہوئے۔ سارا مجھے معاف کر دو، میں سمجھا کہ کوئی مہمان آ رہے ہیں گھر میں۔ ہمارے یہاں کون مہمان آئیں گے؟ اسی لیے تو مجھے غصہ آ گیا تھا کہ پتہ نہیں کون دور پرے کا مہمان آ رہا ہے۔ اچھا تم جلدی سے آنسو پوچھ لو، یہ رشید سب چلے جائیں گے نا تو ہم آج رات اس خوشی میں کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھائیں گے۔ میرے فن کا آغاز کردار سیریز سے ہوا۔ اس سلسلے میں نے کئی ایک پلیز کیے، مگر جو میری پہچان بنا، جسے صحیح معنوں میں کہہ سکتے ہیں، وہ چھاؤں سیریل تھا، جو کہ کوئٹہ ٹیلی ویژن کے لیے بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو کوئٹہ سے اس وقت تک کوئی اتنے خاص ڈرامے پیش نہیں کیے گئے تھے، تو لوگ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کوئٹہ سے۔ جب چھاؤں سیریل پیش کیا گیا تو ایک کہنا چاہیے کہ سارے میں اس کا کافی چرچا ہوا، اور آج تک اس کا چرچا ہے۔ اس کے بعد میں نے اور بھی بہت سارے پلیز کیے، مگر آج تک لوگ مجھے چھاؤں کے نام سے پہچانتے ہیں۔ پروڈیوسر ہارون رند نے آسمان تک دیوار میں مڈل کلاس کی شاعرہ اینی کے خوابوں کی عکاسی کی۔ یہ ڈرامہ سیریل نور الہدی شاہ نے تحریر کی۔ محمد عظیم نے صحرائے چولستان میں جھلستی زندگی کو دریا میں آشکار کیا۔ یہ اصغر ندیم سید کی تحریر تھی۔ وہاں پر پانی پہنچانا ہے۔ ہاں آہستہ آہستہ پانی پہنچ جائے گا۔ میرا پہلا سیریل دریا تھا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس سیریل کو ہم نے پہلی بار پی ٹی وی لاہور سے جب کیا تو ہم کیمرہ بہت دور لے گئے صحرا کے اندر، چولستان کے صحرا میں وہ سیریل ریکارڈ ہوا۔ تو آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کا میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ پہلا تجربہ تھا کہ ایک پورا ڈرامہ جو ہے وہ آؤٹ ڈور میں جو ہے وہ بن رہا تھا، اور اس حوالے سے چولستان کی لائف کا بیک ڈراپ استعمال کرتے ہوئے پاکستانی ثقافت کو ہم نے روشناس کرانے کی کوشش کی کہ ایک ایسا گوشہ تھا کہ جو ابھی لوگوں کی نظر سے اوجھل تھا۔ خلیج امیر گھرانے کی ایک لڑکی اور مڈل کلاس کے ایک آدمی کے درمیان شادی کی داستان تھی۔ دیر لگا دی تم نے فون پہ آتے ہوئے؟ ہاں میں وہ تمہارا بہت بڑا گھر ہے نا، شاید اس لیے۔ تم جانتے ہو کہ مجھے تو چھوٹے گھروں سے پیار ہے۔ 27 نومبر کو چھٹے پی ٹی وی ایوارڈز کی تقریب اسلام آباد میں منعقد کی گئی۔ تقریب کی سرگرمیوں کو 9 کیمروں کے ذریعے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ 18 اپریل 1986 شارجہ پاک بھارت مقابلہ اور جاوید میاں داد کوئی لائے نہیں بھول سکتا۔ جنوری 87 میں پی ٹی وی نے اپنے ماہانہ ہاؤس جنرل ٹی وی نامہ کا اجرا کیا۔ 1985 کے بعد 1987 میں بھی پی ٹی وی کے 4 ری براڈ کاسٹ سینٹرز قائم کیے گئے۔
चीनी ड्रामे पैमाने वफा के बाद 1987 में पाक चाइना को प्रोडक्शन के तहत पाकिस्तान ने रिश्ते और रास्ते के उन्वान से 128 मिनट तवील ड्रामा तख्लीक किया। इसके ताने बाने शाहराह कराकरम के गिर्द बुने गए। कदीम शाहराह रेशम के रास्ते पर अजीम शाहराह कराकरम की तामीर के दौरान दोनों ममालिक के हुनरमंदों ने जान के जो नजराने पेश किए, वही दोस्ती, रिश्ते और रास्ते की बुनियाद बनी। पहले उनसे तो ले ले। तहरीर ताज हैदर की थी। इस खेल को उर्दू और चीनी दोनों जबानों में तैयार किया गया। बख्तियार अहमद ने हिदायतकारी के साथ मरकजी किरदार भी अदा किया। बाबा नहीं अभी पहुंचा? तेरे चाचा उसे ढूंढने गए तो मैं मिला नहीं। देखा तो था, पर मैं जल्दी से आगे चला आया। अब वो तुझे ढूंढ रहे होंगे। अक्टूबर नवंबर 1987 में चौथे वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान और भारत ने मुश्तरका तौर पर की। मुल्क और बैरून मुल्क वर्ल्ड कप की नशरियात बराह रास्त दिखाना पीटीवी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस वक्त पीटीवी के वसाइल इंतहाई महदूद थे। पीटीवी को कम से कम 3 ओबी वैन्स की फौरी जरूरत थी, जिस पर खर्च का तखमीना 18 करोड़ रुपए लगाया गया। मौजूदा कंट्रोलर इंजीनियरिंग मोहम्मद कामिल की सरबराही में इंजीनियरों और तकनीकारों की एक टीम तश्कील दी गई। इस टीम ने ये चैलेंज कबूल किया। पीटीवी के मेहनती इंजीनियरों और तकनीकारों ने बगैर किसी बैरूनी मदद के सिर्फ 7 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में 3 बड़ी ओबी वैन्स बशमूल 3 पावर वैन्स और 2 मिनी ओबी वैन्स ख्वाब से हकीकत बना दी। सिर्फ 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ओबी वैन्स मेयार के एतबार से बैरूनी ओबी वैन्स से बहुत बेहतर साबित हुई। पीटीवी इंजीनियर्स के इस कारनामे को बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा गया। इसका सबूत आइंदा बरस एवीयू के सिडनी इजलास में मिलने वाली खुसूसी सनद थी। मुल्क में स्पोर्ट्स कवरेज के लिए पहली बार 6 कैमरे इस्तेमाल किए गए, जिनमें एक वायरलेस कैमरा भी शामिल था। खिलाड़ियों का स्कोर और मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए पहली बार कंप्यूटर भी इस्तेमाल किया गया। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की कवरेज से पीटीवी को उस साल अपनी मजमूई आमदनी के 4.53% के बराबर रकम हासिल हुई। उसी साल पीटीवी ने क्वांटल पेंट बॉक्स खरीदा। ये एक मुनफरिद और आला दर्जे की मशीन है। वो काम जो आर्टिस्ट, डिज़ाइनर और कार्टूनिस्ट वगैरह महीनों में करते हैं, वो इस मशीन के जरिए सेकंडों में किया जाता है। 1987 के दौरान में पीटीवी के प्रोग्रामों में इर्तिका का अमल जारी रहा। दुनिया में बच्चों के एक मकबूल प्रोग्राम सेसमी स्ट्रीट को जुलाई-सितंबर की सेमाही से पीटीवी ने भी दिखाना शुरू किया। आली पर क्या गुजरी बच्चों का एक खूबसूरत ड्रामा सीरियल था। इसे अयूब खाबर ने पेश किया। कोयटा मरकज से सज्जाद अहमद ने अलिफ पे के उन्वान से एक दिलकश स्टेज शो शुरू किया। इसके कुल 42 प्रोग्राम टेलीकास्ट किए गए। कराची मरकज से होनहार का आगाज हुआ। इसे सलीम मुगल ने तहरीर किया। पेशकश की जिम्मेदार शाहीन अंसारी थी। तो ड्रामा एक फ्रेम के अंदर बनता है। ये फ्रेम जिसके अंदर मैं बैठा हूँ। लाहौर मरकज के मैं और आप का शुमार पीटीवी के चंद यादगार प्रोग्रामों में किया जाता है। अवामी राय पर मबनी इस सिलसिले ने माशरती बुराइयों को बेनकाब करने में अहम किरदार अदा किया। इस प्रोग्राम के मेजबान और प्रोड्यूसर मोहम्मद सलीम ताहिर थे। वो इस प्रोग्राम की तहकीक भी खुद करते थे। उन्होंने प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग के दौरान में बड़ी जुरत और हौसले का मुजाहिरा किया। भट्टा मजदूरों के मुतालिक एक प्रोग्राम को देखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें नस्ल दर नस्ल गुलामी से निजात दिलाई। वो असेंबली में भेजता है, वो हॉर्स ट्रेडिंग करता है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आवाम के पास आनी चाहिए। इस्लामाबाद पर एक खूबसूरत दस्तावेजी फिल्म बनाई गई जो चीन भेजी गई। ये दस्तावेजी फिल्म सूफिया लतीफ़ी की तख्लीक थी। अक्टूबर 1987 की सेमाही से इस्लामाबाद मरकज से एक और शो आपका ज़मीर शुरू किया गया। इसके मेज़बान मशहूर शायर ज़मीर जाफरी थे। ये कैसर फारूक की प्रोडक्शन थी। अप्रैल 1987 से दस्तावेजी प्रोग्रामों के एक और सिलसिले नक़ूश का आगाज हुआ। इसमें कई मयारी दस्तावेजी फिल्में दिखाई गईं।
جو بالکل ہی ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، از دی ڈاکیومنٹری. اگر آپ نے ورلڈ لیول پہ اپنے پروگرام چلوانے ہیں تو ڈرامہ نہیں کوئی دیکھے گا، یہ وہم ہے آپ کا، کیونکہ اس کا ایک کلچرل بیک گراؤنڈ ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور جو ہمارا تو ہم بھی دیکھیں گے. لیکن ورلڈ کلاس ڈاکیومنٹری اگر آپ بنائیں گے تو وہ چلے گی، ڈسکوری پہ بھی چل سکتی ہے، چینل 4 پہ بھی چل سکتی ہے، سینٹرل ایشیا میں بھی چل سکتی ہے. اس کی انکریجمنٹ کوئی نہیں. A documentary is the most painful thing to do on television. It may take you 6 months. It may take you 7. لاہور مرکز سے آصف قاضی نے موسیقی کے نئے پروگرام کومل کا آغاز کیا. حسینہ معین کی ڈرامہ سیریل دھوپ کنارے بڑی مقبول ہوئی. اس کی ہدایات ساحرہ کاظمی نے دی. کوئٹہ سے امر جلیل کے بھنور کو طارق معراج نے پیش کیا. گانا بھی گا سکتے ہو، اور دوسری بڑی بات یہ کہ شے کی دم ہوتی ہے اور افسوس کی تمہاری دم بھی نہیں ہے. چیز جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ڈرامے کی جو پچھلی تاریخ ہے وہ ایک پرفیکٹ ایک سٹوری، ایک کہانی ہوتی تھی اس کے پیچھے، اور جس سے رائٹر کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اس کو اس تھیم کے منفی اور مثبت پہلوؤں سے روشناس کرانا ان کا. لیکن آج کل کے دور میں ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈش وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں، مختلف چینل جو ہمارے پاس ہیں، یہاں ہم اپنے اصل موضوع سے ہٹ گئے ہیں. پشاور سے چترال کی لوک کہانیوں پر مبنی سیریز ریشم جہاں زیب سہیل نے پروڈیوس کی. کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے. سروکرتسے کے چپے چپے میں جشن کے انتظامات ہو رہے ہیں. لاہور مرکز کے ڈرامہ سیریل نگار خانہ میں ڈاکٹر انور سجاد اور پروڈیوسر راشد ڈار نے کئی اچھی کہانیاں تخلیق کی. زیادہ دیر کہیں من نہیں لگتا. خدا حافظ. خدا حافظ. 17 دسمبر کو کوئٹہ میں 7ویں پی ٹی وی ایوارڈ کی تقریب منعقد کی گئی. میں نے تمہاری گاگر سے کبھی پانی پیا تھا، پیاسا تھا میں یاد کروں. 1987 میں پی ٹی وی کے مشہور ڈرامہ پروڈیوسر شہزاد خلیل کو ڈرامے میں ان کی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا. رنگ ترنگ کے نغموں سے ترتیب دیے گئے کراچی مرکز کے پروگرام کو 1987 میں ایک خصوصی انعام ملا. یہ انعام ماسکو کے رادوگا انٹرنیشنل فیسٹیول آف فوک آرٹ اینڈ ٹیلی ویژن میں دیا گیا. یہ نغمے ساحرہ کاظمی، امیر امام اور ایم ظہیر خان نے ترتیب دیے. میں یہاں خاص طور سے موسیقی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ٹی وی میں جو پروگرام ہوتے تھے وہ اسٹینڈ مائک کھڑا ہوا جیسے ریڈیو میں ہوتے تھے، کچھ ماحول بھی ریڈیو کا صحیح بن جاتا تھا. تو یہ ٹی وی کا میوزک نہیں تھا. تو اتفاق سے ہمارے پاس ایک ایسی گلوکارہ تھیں رونا لیلا کی شکل میں، ان سے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ ریڈیو کی سنگنگ سے ہٹنا چاہیے، اور پھر ہم نے ایک پروگرام شروع کیا بزم لیلا کے نام سے، جس میں رونا لیلا خود ہی کمپیئرنگ کرتی تھیں اپنے پروگرام کی، خود ہی گانے گاتی تھیں. جب انٹرنیشنل فورم کے اوپر جیوری ہوتی ہے، اس میں پاکستان کو انعام ملنا اس بات کی ضمانت ہے کہ ہمارا میوزک جو کہ فوک جسے آپ کہیں وہ اتنا رچ ہے، اور پھر اس میں یہ کہ آپ ویسٹرن میوزک سنتے ہیں وہ ایک آپ کا ایک فلیور ہے. ایسٹرن میوزک جو کہ ہم سمجھتے ہیں بے انتہا رچ ہے، اور وہ میوزک کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی. میوزک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کہ اس کی زبان بھی نہ آتی ہو لیکن وہ اس کو انجوائے کر سکے، جس میں کہ ہیر کا آئٹم جو تھا وہ بے انتہا پسند کیا گیا، اور رادو کا فیسٹیول میں اس پر مجھے ایوارڈ ملا. میری ڈریم تھی ہمیشہ کہ میں فوک میوزک اور ماڈرن میوزک کا ایک کمبینیشن پیدا کروں. میں نے ہما کیا. اس وقت عجیب لگتا تھا کہ علن فقیر جو ایک
کھلے انداز سے گانے والے ہیں، ان کو نہیں پتہ میوزک کے بارے میں، مطلب بند کے گانے کا نہیں آتا انہیں. ان کو میں نے شیکی کے ساتھ جو ہمارے پاپ سنگر ہیں ان کے ساتھ گوایا. یہ نئی چیز تھی، سکسیسفل رہی، اور اسی طرح کے اور بڑے ایکسپیریمنٹس ٹیلی ویژن کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا. 16 جنوری 1988 کو صبح 7 بجے پی ٹی وی نے صبح کی نشریات کا آغاز کیا. اس کا ابتدائی نام آج تھا. اب یہ صبح بخیر کے عنوان سے نشر کی جاتی ہے. اسے کامیاب بنانے کے لیے پروڈیوسر خالد محمود زیدی نے بڑی محنت کی. پی ٹی وی نے یہ نشریات اپنے وسائل ہی سے شروع کی. اس کے لیے نہ تو نیا اسٹاف بھرتی کیا گیا اور نہ ہی اسٹوڈیوز کی تعداد بڑھائی گئی. پی ٹی وی کی صبح کی نشریات کا حلقہ دن بدن وسیع ہوتا جا رہا ہے. صبح بخیر جو ہے پروگرام، اس کے آخر میں ایک روایت ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. آج وہی چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے: ہمارا پیغام محبت، ہمارا پیغام پاکستان. مارچ 1988 میں پی ٹی وی نے جشن تمثیل کا اہتمام کیا. اس سلسلے میں ہر مرکز نے ایک ایک ڈرامہ تیار کیا. اوجھڑی کیمپ کے سانحے کی وجہ سے اس جشن تمثیل کے انعام یافتگان کا اعلان اور تقریبی تقسیم انعامات منعقد نہیں کی جا سکی. 10 اپریل 1988 کو راولپنڈی میں اوجھڑی کیمپ کے اسلحہ ڈپو میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا. میزائل اور گولوں کی یورش میں مصلح الدین مرحوم اور پی ٹی وی کے جاباز کارکنوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر واقعات کی رپورٹنگ کی اور حقائق منظر عام پر لا کر عوام کے حوصلے بڑھائے. پی ٹی وی کی اس نیوز کوریج کو خصوصی سرٹیفکیٹ ملا. 18 اپریل کو سحری کی خصوصی نشریات کا آغاز کیا گیا. 2 جولائی کو لاہور کے قریب کالا شاہ کاکو میں ری براڈ کاسٹ سینٹر کا افتتاح کیا گیا. 1984 میں اسلام آباد میں پی ٹی وی ٹریننگ اکیڈمی قائم کی گئی. یہ وقت کی اہم ضرورت تھی. یہاں تک پہنچنے کے لیے پی ٹی وی کو کئی ادوار سے گزرنا پڑا. اگست 1988 میں پی ٹی وی اکیڈمی نئی عمارت میں منتقل ہوئی. اسی سال 17 ستمبر سے 2 اکتوبر تک جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول میں 24ویں اولمپکس کھیلوں کا انعقاد کیا گیا. پی ٹی وی نے کھیلوں کے شائقین کے لیے روزانہ جھلکیاں پیش کی اور کئی مقابلوں کو براہ راست بھی نشر کیا. اب مارشل لا پاکستان کے اندر آیا، تب لوگ نہ سیاست پہ بات کر سکتے تھے نہ حکومت کے متعلق. تو پی ٹی وی نے کہا کہ ہم ایک اور سلسلہ لے جہاں لوگوں کو، بندوں کا ذہن الگ طرح پہ لے جائے، اور انہوں نے کھیل کی طرف توجہ دی. قوم کو پتہ لگا کہ دنیا میں کیا کیا کھیل ہے، کیا کھیل کیا قسم کے ہیں، اور اس وجہ سے آج بھی پرنٹ میڈیا جو اخباروں میں نکلتا ہے، جو پہلے سپورٹس پیج کے اندر 6 کالم 3 انچ کا آتا تھا، آج ہر اخبار 2، 3 اور 4 صفحہ ہر روز کے نکالتے ہیں سپورٹس کے اوپر. اس وجہ سے کہ پوری عوام پاکستان کی، ان کو ذہن کھل گیا کہ اس کھیل کیا ہے. 1988 ملک میں نئے انتخابات کا سال بن گیا. اس مقصد کے لیے پی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹرز میں الیکشن سیل قائم کیا گیا. 16 نومبر کو قومی اور 19 نومبر کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے موقع پر پی ٹی وی نے اپنی روایات برقرار رکھتے ہوئے عوام کو تازہ ترین نتائج سے آگاہ کیا. اس موقع پر خصوصی پروگرام بھی پیش کیے گئے. بے نظیر بھٹو 2 دسمبر کو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئی. انہوں نے 2 دن بعد اسلام آباد مرکز سے بی بی سی کے نمائندے ڈیوڈ فراسٹ کو مواصلاتی سیارے کے ذریعے براہ راست انٹرویو دیا. At the time,
of marriage. 1988 ही में PTV के शोबे सेल्स ने यूमैटिक यानी खुसूसी टेप पर इश्तहारात वसूल करना शुरू कर दिए। इससे कबल 16 mm की फिल्में इस्तेमाल की जाती थीं। PTV के इस अमल से इश्तहारात बनाने वाले कई इदारे वजूद में आए और इश्तहारात में तनव्वु भी पैदा हुआ। 1988 के दौरान में भी PTV के प्रोग्राम शायकीन के लिए पुरकशिश साबित हुए। पेशावर मरकज से एक कहानी बहुत पुरानी शुरू की गई। इसे गुलाम मोहम्मद कासिर लिखते थे। हमें भी दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए बाबा जान। 7 दिन के इख्तिताम के फौरन बाद कराची मरकज से TV इंसाइक्लोपीडिया शुरू किया गया। कराची मरकज से यस सर नो सर का आगाज हुआ। मेजबान मोइन अख्तर थे, प्रोड्यूसर के फराइज कासिम जलाली ने अंजाम दिए। ये बताइए कि टेलीविजन पर आपने एक मीना बाजार भी तो लगाया था। तो जब आप ये जुमा बाजार लगा सकते हैं तो क्या मैं मीना बाजार नहीं लगा सकती? जनवरी में लाहौर की ड्रामा बंद गली को अवाम ने बहुत पसंद किया। ये अशफाक अहमद की तख्लीक थी और हिदायत मोहम्मद अजीम ने दी। हमारे अब्बा जी ने 1 रुपया हमको देना, तो वो 1 रुपया अगली ईद तक हमारे पास चलना। पेशावर से जेल के पस मंजर में एक सीरीज सलाखें पेश की गई। इसके प्रोड्यूसर जहांजेब सुहेल और जियाउर रहमान थे। समोसे खिलाओ। अगर इसे शहर कहते हैं ना तो फिर सारे डाकियों को अवार्ड मिलना चाहिए सियाहत का। पेशावर टेलीविजन का ग्राफ मेंटेन नहीं हुआ। ऐसे बीच में औकात आए हैं कि जहां बहुत अच्छा हुआ, पूरे पाकिस्तान में हमारे ड्रामे जो हैं वो अप्रिशिएट हुए, लेकिन फिर बीच में कहीं से कोई कोताही हुई और वो ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया। और मैं ये समझता हूँ कि एक दफ़ा आप अच्छा काम कर लें और उसके बाद अगर कोई थोड़ा सा सुस्त काम हो जाए तो दोबारा से उसको उस सतह पे ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सारी कोशिशें अभी भी जारी हैं। बख्तनामा एक बहादुर बलोच खातून की दास्तान थी जिन्होंने अंग्रेज़ हमला आवरों के खिलाफ अपने कबीले की क़यादत की। इस तारीखी ड्रामे को आरिफ ज़िया ने तहरीर किया। इसके प्रोड्यूसर दोस्त मोहम्मद गिशकोरी थे। अंग्रेज सरकार ने कुछ ज्यादा सख्ती शुरू कर दी है। अब हमें मजीद मुहतात होना पड़ेगा। बाबा, अब आप ज़ईफ हो चुके हैं, आप आराम करें। गोलियां लाने का काम मैं करूंगी। नहीं बेटे नहीं। बख्तनामा ठीक कह रही है बाबा। सिंधी ज़बान के मशहूर अदीब मिर्ज़ा कलीज बेग के शाहकार नावल जीनत की ड्रामाई तश्कील फातिमा सुरैया बजिया ने की। प्रोड्यूसर के फराइज मोहम्मद बख्श समीजों ने अंजाम दिए। इसे अवाम की अक्सरियत ने बड़ी तवज्जो से देखा। इससे कबल ये सीरियल सिंधी ज़बान में अब्दुल करीम बलोच ने पेश की थी। तुम जीनत हो ना? आपकी जीनत मर चुकी मालकिन, मैं आस हूँ। अब खुद को संभाल लें वरना साहिल मिर्जा का घर उजड़ जाएगा। कराची मरकज से ज़किया अकबर की सीरियल साई भी मकबूल हुई। इसके प्रोड्यूसर शहजाद खलील थे। आप चलो बेटा, आप चलो। बुआ जाइए, जीना को ले जाके झूला झूला दीजिए। अच्छा। और बुआ? जी साहब जी। शुक्रिया बुआ। कछुआ और खरगोश वो पहली प्राइवेट ड्रामा प्रोडक्शन थी जो PTV ने पेश की। निशान राह दस्तावेजी प्रोग्रामों की एक खुसूसी सीरीज थी। सहराए थर के लोगों की जिंदगी पर बनाई जाने वाली दस्तावेजी फिल्म थर सरजमीन और बाशिंदे को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में होने वाले ABU के मुकाबले में खुसूसी इनाम से नवाजा गया। ये दस्तावेजी फिल्म नाज़िमुद्दीन ने तैयार की और इसे ज़ियाउर रहमान ज़िया ने तहरीर किया। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी हम दस्तावेजी फिल्म बनाएं वो बैनुल-अक़वामी मेयार की हो। इसके लिए हम जद्दोजहद करते रहते हैं, तहरीर में भी और इसके साथ साथ प्रोडक्शन में भी। और लेकिन बाहर की दस्तावेजी फ़िल्मों से हमारी दस्तावेजी फ़िल्मों का मवाजना किया जाता है। तो जो काम वो जो दिन जो वक्त वो एक मंज़र की अक्कासी करने में लगाते हैं उतने वक्त में हम लोग 6-7 डॉक्यूमेंट्रीज बना लेते हैं। इसी तरीके से वो उनको जो वसाइल दिए जाते हैं, जो काम वो कई सालों में करते हैं,
हमें वही काम जो है वो कई दिनों में करना पड़ता है। आप हमें वसाइल दीजिए और हमसे अच्छी दस्तावेजी फिल्में लीजिए। नए साल की आमद पर नए अंदाज से स्टेज शो म्यूजिक 89 का एहतमाम किया गया। उन्नीस सौ 89 में 20 से 27 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में जनूबी एशिया के ओलंपिक्स चौथे सैफ गेम्स का इनेकाद किया गया। ये अब तक पाकिस्तान में होने वाले खेलों के सबसे बड़े मुकाबले हैं। पीटीवी के तवज्जुद से एक बड़ी इश्तहारी मुहिम चलाई गई। खेलों को बराह रास्त पीटीवी से दिखाने के लिए 6 ओबी वैन्स इस्तेमाल की। ये अब तक पीटीवी की तारीख की सबसे बड़ी कवरेज है। नवंबर में पीटीवी की सिल्वर जुबली के मौके पर पीटीवी ने 16 खुसूसी प्रोग्राम टेलीकास्ट किए। महकमा डाक हुकूमत पाकिस्तान ने पीटीवी की 25वीं सालगिरह के मौके पर एक खुसूसी यादगारी टिकट जारी किया। 26 नवंबर 1989 को पीटीवी की सिल्वर जुबली के दिन लियाकत जिम्नेजियम रावलपिंडी में एक ग्रैंड शो का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में पीटीवी के लिए खिदमत अंजाम देने वाले 320 अफराद को तमगे दिए गए। ये तकरीब बराहे रास्त नश्र की गई। इस मौके पर कई गैर मुल्की टेलीविजन्स ने पीटीवी के लिए मुख्तलिफ पैगामात और नगमे इरसाल किए। To the lovely people of Pakistan, warmest greetings and heartiest congratulations on the occasion of your silver jubilee. 10 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान और जापान के दरमियान एक माहदे पर दस्तखत हुए, जिसके तहत हुकूमत जापान ने पाकिस्तान में दूसरे टीवी चैनल के लिए तकरीबन 25 करोड़ रुपए की इमदाद दी। 1989 में तुर्की में बच्चों के एक बैनुल अक़वामी मेले का एहतमाम किया गया। इसकी मेज़बानी तुर्की के रेडियो टीवी ने की। इस मेले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ सुहेल राना के ग्रुप को हासिल हुआ। जनवरी 1989 से पीटीवी कोयटा से एक नया प्रोग्राम मेरी किताब शुरू हुआ। इस प्रोग्राम की तैयारी में चारों सूबों की निसाबी कुतुब से मदद ली गई। पेशावर से जानवर हमारे दोस्त का आगाज हुआ। 2 जुलाई 1989 से लाहौर मरकज ने स्टेज शो स्टूडियो 2 शुरू किया। इसके मेजबान नईम बुखारी थे। प्रोड्यूसर के फराइज राशिद डार ने अंजाम दिए। ये प्रोग्राम तकरीबन 2 साल जारी रहा और इसके 82 प्रोग्राम पेश किए गए। डॉक्टर फरिश्ते भी हैं और ये मुआज़े भी करते हैं। 10 अक्टूबर 1989 से इस्लामाबाद मरकज से स्टेज शो मेहमान खुसूसी शुरू हुआ। इसके कंपेयर आदिल नजम थे। पेशकश जमशेद फरशोरी की थी। इट इज नॉट ए न्यू टेक्नोलॉजी, लेकिन सूरज की रोशनी से बिजली बना लेना इज ए कमाल। अब वो नई टेक्नोलॉजी है और उसकी खोज में मैं लगा हुआ हूँ। 1989 में हालात हाजरा के कई नए प्रोग्राम शुरू किए गए। ज़रूरत इस बात की भी है कि दूसरे अखराजात से रकम कम की जाए और तालीम पर लगाई जाए। फर्रुख बशीर ने आहंग के उन्वान से मौसीकी के एक दिलकश सिलसिले को प्रोड्यूस किया। गाने मतलब ऐसे गाते थे कि जो दिल को सुकून होए और अपने दिल में ठंडक हो। इसी साल अदनान समी खान का एक प्रोग्राम क्लासिक 1 के उन्वान से सरमत सहवाई ने पेश किया।
जेल में कैद खवातीन के मसाइल पर मबनी ड्रामा सीरियल नीले हाथ ने भी बड़ी मकबूलियत हासिल की। 89 में नीले हाथ का ये जो प्ले है जो कि औरतों वुमेन प्रिजनर्स के बारे में था, ये शाहिद नदीम जो मेरे शौहर हैं उन्होंने लिखा और मैं शुरू से इसमें इन्वॉल्व थी, बल्कि मुल्तान जेल जाके मैं ही अंदर गई थी क्योंकि ये मर्द होने की वजह से अंदर नहीं जा सकते थे और वहाँ पे सारी रिसर्च मैंने ही की थी, इंटरव्यू लोगों के मैंने ही किए और उसके बाद ये जब प्ले हुआ टेलीकास्ट तो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। प्यास लाहौर मरकज का एक और यादगार ड्रामा सीरियल साबित हुआ। अवाम ने इसकी बड़ी पजीराई की। तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले और मेरी तरफ से इजाजत है। खुदा की बस्ती के बाद शौकत सिद्दीकी के एक और नॉवेल जांगलूस को एक ड्रामा सीरियल का रूप दिया गया। इसकी हिदायत काजिम पाशा ने दी। ये बता, तूने अपने बारे में क्या सोचा? मेरा क्या है, मैं तो दरख्त से टूटा हुआ एक पत्ता हूँ, कहीं भी चला जाऊंगा। 1989 में ख्वाजा नजमुल हसन के मौसीकी के तरतीब दिए हुए प्रोग्राम मूड्स एंड मेलोडीज को एक बैनुल अक़वामी इनाम मिला। उन्हें मई में मॉस्को में मुनक़िदा रादुगा इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ आर्ट टेलीविजन में खुसूसी इनाम दिया गया। अमजद इस्लाम अमजद के शाहकार ड्रामा सीरियल वारिस को चीनी जबान की सब टाइटलिंग के साथ चीन में दिखाया गया। चीनी अवाम ने इसे बेहद सराहा। इस सिलसिले में चीन में एक किताब भी शाया हुई। मैं चौधरी हशमत खान और सारी उम्र के लिए मैं आर्ग्यूमेंट के थले लग जाऊं। इन 5 वर्षों में पीटीवी के तमाम मराकज़ ने इलाकाई प्रोग्रामों पर भी खुसूसी तवज्जो दी। इनकी नशरियात का दौरानिया भी बढ़ाया गया। इसी किस्से कहानियां जेडे लिखे हुए शायरी दी शक्ल च मसलन वारिस शाह दी हीर हैगी तो गाण तक या असी पंजाबी जुबान सुनी हुई सी रेडियो दी वसातत नाल। टेलीविजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਚਾਲਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ। वालेकुम सलाम। पुट तू त ॾाढी वॾी थी वई आहीं, हैं? मूंखे सुञाणी थी? हाँ चाचा। शाबाश। आउं तुंहिंजे लाइ तमामु घणियूं सूखड़ियूं वठी आयो आहियां, हैं? ॾिसंदीअ तूं ख़ुशि थी वेंदीअ, तमामु घणियूं सूखड़ियूं। हेलो। 1985 से 1989 के दौरान में पीटीवी का इर्तिकाई अमल जारी रहा। 1984 में पीटीवी की नशरियात की पहुंच 80.74% आबादी तक थी। 1989 में तकरीबन 87% आबादी तक नशरियात का दायरा वसी हो गया। 1984 में पीटीवी का नशरियाती रकबा मुल्क के मजमूई रकबे का 34.24% था। 1989 में ये रकबा तकरीबन 36% तक पहुंच गया। 1983-84 में पीटीवी की आमदनी 22 करोड़ 32 लाख 70 हजार रुपए। 1988-89 में आमदनी 48 करोड़ 52 लाख 80 हजार रुपए। 1984 में इश्तहारात का दौरानिया 820 घंटे। 1989-90 में 899 घंटे। 1985 से 1989 के दौरान में पीटीवी ने नई जहतें इख्तियार की। पीटीवी के प्रोग्रामों की मुल्की और बैनुल अक़वामी पजीराई में इजाफा हुआ। पीटीवी ने 9 नए रीब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स कायम किए। पीटीवी के तकनीककारों की सलाहियतों का एतराफ़ पहली मर्तबा बैनुल अक़वामी सतह पर भी किया गया। पीटीवी ने मजमूई तौर पर 105 ड्रामा सीरियल और सीरीज पेश की। सुबह की नशरियात शुरू की गई। प्राइवेट टीवी चैनल के क़याम से पीटीवी के और प्राइवेट चैनल के दरमियान मुकाबला शुरू हुआ। पीटीवी के तालीमी चैनल की राहें हमवार हुईं।
1985 से 1989 के दरमियान 5 वर्षों में पीटीवी के 5 MDs तब्दील किए गए। मुल्क में 2 मरतबा आम इंतखाबात हुए, लेकिन पीटीवी ने मुल्क में जमहूरियत की बुनियादें मुस्तहकम करने में बड़ा फाल किरदार अदा किया। पीटीवी का ये सफर नई मंजिलों की नवेद बना। तस्वीरों के संग आवाजों के रंग 30 साल की लगन नक्शे आईनाए फन पीटीवी का सफर पहुंचा है घर घर। जिंदगी के हर पहलू को नुमाया यूं किया, शौक शौक का हंसी एक शऊर भी दिया। ये शऊर ये सफर इसी तरह नए दिनों नई मुसाफतें लिए रोशनी बना रहे, रवा दबा रहे, यूं ही रवा दबा